Hello children, so today we are going to start chapter 14, the foundings of the United Nations by Coral Publisher. Right children, so let's continue the chapter. First of all, we will start with introduction part. The United Nations, formerly known as the United Nations Organization, is an organization of nations that work for world peace and security and the betterment of humanity. Yes, so children, we will start with our introduction part. The United Nations, formerly known as the United Nations Organization. It is an organization of nations that work for world peace and security and the betterment of the humanity. ये किस किस के लिए वर्क करता है? ये हमारे नेशन के लिए वर्क करता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है और नेशन की पीस और बेटरमेंट के लिए वर्क करता है. It was formed on 24th October 1945 और यूनाइटेड नेशंस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को. इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क सिटी यूएस और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी यूएस में है. इन द बिगिनिंग इट हैड ओनली 51 मेंबर्स. स्टार्टिंग में क्या था कि इसके केवल 51 मेंबर्स थे. टुडे ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द यूएन. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो हमारे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा प्लेस या कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो यूएन की मेंबर नहीं है. Each member nation sends representatives to the UN headquarters where they discuss and try to solve problems. अगर हम बात करें आज के टाइम में हर एक नेशन का जो मेंबर है यूएन का वो क्या करता है, यूएन हेडक्वार्टर भेजा जाता है जहाँ पर वो सभी मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी चीज़ें डिस्कस करते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले पैराग्राफ की तरफ. Yes children, so now we will read about the formation of the United Nations. किस तरीके से United Nations का formation हुआ है. With the Industrial Revolution in Europe, the life of people of European countries changed drastically. अगर हम Industrial Revolution की बात करें जो कि यूरोप में हुआ था तो इसने क्या किया था, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन लोगों की लाइफ को बिल्कुल ही पूरी तरीके से बदल दिया था. Some European countries like England, France, Germany and Spain built their own empires across the oceans. इन सभी कंट्रीज़ ने क्या किया, जितने भी हमारे ओशियंस के आसपास का एम्पायर था वहाँ पर वो इस्टेब्लिश कर लिया. They started to sell their finished goods to slave countries at very high prices and became very wealthy. उन्होंने क्या किया, अपना जितना भी फिनिश्ड गुड्स था, जो सामान था, वो स्लेव कंट्रीज़ को हाई प्राइस पर बेचना शुरू कर दिया और थोड़े टाइम बाद वो काफ़ी वेल्दी हो गए. Their growing wealth made them jealous of one another. उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनकी वेल्दीनेस बढ़ती गई वैसे ही वो आपस में एक दूसरे से जेलस फील करने लगे. Their growing wealth made them jealous of one another. This led to the outbreak of two big wars. जिसकी वजह से क्या हुआ, दो हमारे बड़े बड़े wars हुए, World War I and World War II. The World War was fought from 1914 to 1918. जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो कब लड़ा गया था, 1914 to 1918 तक. The World War II started in 1939 and it was ended in 1945. These wars were fought on land, in water and in the sky. ये तीनों जगह पर वॉर हुआ था. The World War II was far more destructive than the World War I. अगर हम World War II की बात करें तो वो World War I से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक था. The United States of America dropped atom bombs on two Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th August 1945. अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को एटम बॉम्ब गिरा दिए थे. Hundreds of thousands of people lost their lives. हज़ारों लोगों ने अपनी जीवन गंवा दिया था. Industries, towns and cities were reduced to ashes in minutes. और बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे लोग सब थोड़ी देर में ही राख में मिल गए थे. This opened the eyes of the right thinking person. और इसी वजह से लोगों की आंखें खुली और उन्होंने देखा कि उनके लिए क्या चीज़ें ठीक हैं. People all over the world realized that if another such war broke out, लोगों ने सोचा अगर इसी तरीके से बाकी और भी युद्ध होते रहेंगे it would destroy the whole world. और अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन इस पूरे संसार का सर्वनाश हो जाएगा. This led
द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और यही रीज़न है कि हमें यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन करना पड़ा. Now we will move ahead with the another paragraph. During the World War II, the representatives of 9 European governments fled to London. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उसके बाद क्या हुआ, जितने भी हमारे यूरोपियन गवर्नमेंट के लोग थे वो कहाँ चले गए, दे वेंट टू लंदन. जर्मनी हैड कनकर्ड मच ऑफ यूरोप, जिसमें जर्मनी का जितना भी पार्ट था वो ज़्यादातर यूरोप में शिफ्ट हो गया था. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड किंगडम मेट इन लंदन, जितने भी हमारे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, यूनाइटेड किंगडम के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो कहाँ चले गए, दे मेट विद द लीडर्स ऑफ लंदन ऑफ अदर कंट्रीज़, और बाकी दूसरी कंट्रीज़ के लीडर से भी वो जाकर मिले. On 12th June 1941, all these nations signed a declaration pledging of world for a free world where people could live peacefully. अगर हम बात करें, अगर 12 जून 1941 को जितने भी हमारे नेशंस के डिक्लेरेशन थे जिन्होंने प्लेज किया था वर्क करने के लिए, वो एक फ्री वर्ल्ड की तरह रहने लगे जहाँ पर सभी लोग बहुत ही पीसफुली रहते थे. दिस लेड टू द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और तभी से यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ. After 2 months, the Atlantic Charter was signed by the President of the United States. 2 महीने के बाद ही क्या हुआ, जो भी अटलांटिक चार्टर था वो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा साइन किया गया था. एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर भी उन्हीं के साथ थे. द चार्टर एक्सप्रेस दैट होप फॉर अ वर्ल्ड वेयर ऑल पीपल कुड लिव पीसफुली, और उस चार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें ये मेंशन था कि किस तरीके से लोग बहुत ही पीसफुल जीवन जी सकते हैं विदाउट एनी फियर. ऑन 1 जनवरी 1942, representatives of 26 nations signed the declaration by the United Nation. 1 जनवरी 1942 को जितने भी हमारे 26 नेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के डिक्लेयर किए हुए चार्टर को साइन किया था. ऑन 26 जून 1945, अगर हम 26 जून 1945 की बात करें, इट हैड 51 मेंबर्स. तो कितने मेंबर्स थे, देयर वर 51 मेंबर्स. अ चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशन. अगर हम बात करें तो 50 नेशंस के जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या किया, उस चार्टर पर साइन किया. दैट वर प्रेजेंट एट द कॉन्फ्रेंस, जो कि उस टाइम कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे. पोलैंड हैड बीन अनेबल टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस. जो पोलैंड था वो उस टाइम पर कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर पाया था, बट लेटर, लेकिन बाद में, साइन द चार्टर एज एन ओरिजिनल मेंबर, लेकिन उसने बाद में चार्टर को ओरिजिनल मेंबर के फॉर्म में साइन किया था. द चार्टर वेंट इनटू इफेक्ट ऑन 24 अक्टूबर 1945. अगर हम चार्टर की ऑफिशियली बात करें तो वो 24 अक्टूबर 1945 को इफेक्ट में आया था. दिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज यूनाइटेड नेशंस डे, और तभी से हर साल हम इस दिन को यूनाइटेड नेशंस डे के नाम से मनाते हैं. Yes children, now we will start with objectives of the United Nations. What were the objectives? The major objectives of the United Nations are, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, टू वर्क फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. उन्हें क्या करना था, जितना भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी थी उसके लिए वर्क करना था. एंड सेटल ऑल डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर नेशन इन अ पीसफुल मैनर, और वो चाहते थे जितने भी आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं या फिर मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर प्यार से और शांति से रहे. टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, नेशंस के बीच में वो एक फ्रेंडली रिलेशन प्रमोट करना चाहते थे विद इक्वल राइट्स फॉर ऑल, जिससे कि सभी को समान अधिकार मिल सकें. थर्ड वन इज़ टू कोऑपरेट विद ईच नेशंस इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम पीसफुली, और जिससे क्या करें, जितने भी हमारे आपस में नेशंस हैं वो चीज़ों को बहुत ही पीसफुली ट्रीट करें और सॉल्व करें. टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, वो क्या करते थे, ह्यूमन राइट्स के जितने भी हमारी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करते थे. एंड सपोर्ट द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, और वो सभी लोगों के लिए फ्रीडम चाहते थे रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, सेक्स, रिलीजन, कलर और लैंग्वेज. इन सभी से हटकर वो सबके लिए एक इक्वालिटी चाहते थे. टू प्रोवाइड अ मीटिंग प्लेस वेयर ऑल नेशंस कैन वर्क टुगेदर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड अबव, और वो ये चाहते थे कि जितने भी स्टेट हैं वो सभी मिलकर क्या करें, एक साथ मिलकर मीटिंग्स करें, जिससे कि वो एक दूसरे के ऑब्जेक्टिव्स को भी बहुत अच्छे से फुलफिल कर पाएँ.
टू असेस नेशंस इन दीज टास्क एंड कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स। और वो क्या चाहते थे कि उनके जितने भी नेशन के टास्क हैं या फिर जो एफर्ट्स हैं आपस में वो असेस्ट करें और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। Yes children, now we will read about human rights set by the United Nations। उन human rights के बारे में पढ़ेंगे जो हमें United Nations में देखने को मिलते हैं। In order to achieve the above objectives, the United Nations had set the following human rights। अगर हम बात करें अपने जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हमें कैसे अचीव करना है, तो वी हैव टू फॉलो दीज ह्यूमन राइट्स। राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन ऑफ अ कंट्री, हमें क्या करना है, एक कंट्री के फ्री सिटीज़न का होने का एक राइट होता है। हम किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकते हैं और पीसफुली रह सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हमें क्या करना है, हर किसी के लिए इक्वल राइट्स रखने हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, हमें क्या करना है, अगर कोई इक्वली वर्क कर रहा है तो उसका पेमेंट भी इक्वली होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ वर्शिप, हमें वर्शिप करने की प्रॉपर फ्रीडम है। नाउ वी विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स कम विद मी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1914। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 में स्टार्ट हुआ था। इट एंडेड इन 1918 और इसका जो अंत हुआ था वो 1918 को हुआ था। व्हेन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज बिकेम जेलस ऑफ वन अनदर्स पावर एंड वेल्थ, जिसमें क्या हुआ था, जो भी कंट्रीज थी वो आपस में एक दूसरे से काफ़ी जेलसी रखने लगी थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज स्टार्टेड इन 1939 and it was ended when the USA dropped atom bombs on the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan। और ये तब ख़त्म हुआ था जब क्या किया था, यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नेम की सिटीज़ पर एटम बॉम्ब गिरा दिया था। द यूनाइटेड नेशंस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन 24 अक्टूबर 1945। और जो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। Its main aim was to promote peace by avoiding every kind of war। और वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में किसी भी तरह का कोई वॉर ना हो। When the UN was formed, it had 51 members including India। और जब UN का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पर इंडिया को लगाकर 51 members were there। So now it's time to check your progress। Let us start solving the exercise of this chapter। Yes children, so now it's time to solve the worksheet of this chapter. Let's start with check your progress with take the correct option। The United Nations was formed on dash 1945। United Nation का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को। The first world war was fought from dash and dash। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था चिल्ड्रन, 1914 to 1918 तक। राइट, नाउ वी विल सी द ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो ह्यूमन राइट्स डे होता है वो हम कौन से डे को सेलिब्रेट करते हैं, सो वी सेलिब्रेटेड ऑन 10th December। Now on January 1, 1942 dash nation signed the declaration by the United Nation। अगर हम 1 जनवरी 1942 की बात करें तो कितनी कंट्रीज थी जिन्होंने यूएन के डिक्लेरेशन पर साइन किया था। नाउ यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move ahead with the fill in the blank and true false option। Yes children, so let's start with fill in the blanks option of this chapter। The United Nations headquarters are in, जो भी UN का headquarter था, so where it was, so it was in New York। During the World War II, the USA dropped an atom bomb on Hiroshima on। So you have to tell जब World War II था तो US ने हिरोशिमा पर जो बॉम्ब था वो कब गिराया था, तो 6 and 9 अगस्त। 6 and 9 अगस्त विल बी द राइट ऑप्शन। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज फॉट फ्रॉम, आपको ये बताना है कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो कब से कब तक चला था। सो इट वॉज स्टार्टेड इन 1939 and it was led till 1948। Right children, now the United Nations Day is celebrated every year on। जो United Nations है वो हम हर साल किस दिन मनाते हैं, so the answer will be 10th December। Yes children, now we will continue with true false option। World wars fought because of jealousy of industrialized nation। क्या जो हमारे वर्ल्ड वॉर थे वो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस की आपस की जो जेलसी थी उसकी वजह से हुए थे। सो yes, we can say this was also a cause। द वर्ल्ड वॉर सेकेंड लास्टेड फॉर 4 years। क्या जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 4 years तक चला था। सो येस, वी कैन मूव अहेड विद इट। दैट विल बी ऑल्सो अ ट्रू ऑप्शन।
Now rest of the questions answers of this chapter you have to do by your own. I hope you liked today's session. Have a good day ahead. Thanks for watching this video.